Hello students, today we are going to start the book snapshot, class 11th, subject English. Day 1, because this chapter is also very long, it will take at least 3 lectures to explain you. The lesson is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saran. Difficult words, magnificence, it means extremely beautiful. Mysterious means impossible to understand. But this story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. ये जो कहानी है जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है जो बहुत पुअर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बट देयर ट्राइब्स hallmark is trust and honesty. It means their tribe is known by their honesty and trust. One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back there in good old days. जब बहुत पुराने बट बहुत अच्छे दिन होते थे, जब मैं 9 साल का था, तो उस समय सारा संसार एक इमेजिनेशन जैसा सुंदर लगता था और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी एक जॉयफुल बट मिस्टीरियस ड्रीम है. मिस्टीरियस मीन्स जिसको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है. उन दिनों में माय कज़न मुराद, मेरा कज़न यानी कि मेरा चचेरा भाई मुराद, जो कि क्रेजी माना जाता था सभी फैमिली मेंबर्स की तरफ से, जैसे जो भी उसको जानते थे एक्सेप्ट मी, सब उसको सन की मानते थे. केम टू माई हाउस, मेरे घर आया. कितने बजे? मॉर्निंग में 4 बजे. और उसने मुझे मेरी विंडो पे टैपिंग करके जगाया. विंडो पे हाथ से खटखटाने को बोलते हैं टैपिंग करना. टैपिंग करके जगाया. आराम ही सेड, उसे मेरा नाम लिया आराम. अब ये जो 2 बॉयज़ हैं, दोनों में से एक मुराद है जो कज़न है, और the real boy, the real hero of the story is Aram. I jumped out of the bed and looked out of the window. मैं बिस्तर से एकदम कूदा और खिड़की में जाकर देखने लगा. I couldn't believe what I saw. मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मैं देख रहा था. It was morning yet, but it was summer and with daybreak not many minutes. Around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. कहते बहुत ज़्यादा सुबह नहीं हुई थी, दिन नहीं चढ़ा था, बट अंधेरे को चीरने वाली रोशनी आ चुकी थी. मैं अपने आसपास बहुत रोशनी महसूस नहीं कर रहा था, बट इतनी रोशनी थी कि मुझे पता लग गया था कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ. माई कज़न मुराद was sitting on a beautiful white horse. मेरा कज़न मुराद एक बहुत सुंदर से घोड़े पर बैठा था. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने अपना सिर थोड़ा सा नॉकिंग किया और मैंने विंडो से देखते हुए अपनी आंखों को रब किया. Yes, he said in Armenian, it is a horse. उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ ये एक घोड़ा है. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. जल्दी से आ जाओ अगर तुम इसको सच करना चाहते हो, इसकी सवारी करना चाहते हो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मैं जानता था मेरा कज़न मुराद ज़िंदगी को जीना जानता है, वो गलती से इस संसार में आ गया है, परंतु जो आज देख रहा था उस पर विश्वास करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था. In the first place, my earliest memories had been memories of horses. And my first longings had been longings to ride. सबसे पहली जो मेरी ज़िंदगी की यादें थी वो घोड़े से जुड़ी हुई थी, और जो मेरा सबसे पहला शौक़ था वो राइड करना ही था. This was the wonderful part. ये एक बहुत सुंदर चीज़ थी मेरी लाइफ की. But in the second place we were very poor. अब सेकंड थॉट उसके दिमाग में आ रहा है कि वो बहुत गरीब है. This was the part of that wouldn't permit me to believe what I saw. और ये सेकेंड पार्ट जो है मेरी लाइफ का, दैट आई एम बिलोंगिंग टू अ पुअर ट्राइब, पुअर फैमिली, वाज नॉट अलाउइंग मी टू बिलीव ऑन व्हाट ही वाज वाचिंग. जो वो देख रहा था उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था.
We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty striken. Every branch of Gallo-Gallican family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we were ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty and something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong, so none of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. We were poor, वो बहुत गरीब थे. We had no money, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे. जो हमारा पूरा ट्राइब था वो गरीबी के जाल में था, और हमारे हर गैरो-गैलिलियन फैमिली का हर एक ब्रांच, हर एक फैमिली को गरीबी ने घेर रखा था. कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपना भरपेट खाना खा सकें, इवन कि ओल्ड मैन को भी खिला सकें, जो हमारे मतलब ओल्ड हमारे बुजुर्ग होते हैं. तो कहते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि जब हमारी फैमिली वाज नोन एज द वेल्थिएस्ट फैमिली, उस समय भी हम बहुत ऑनेस्ट थे. आज भी हमारा ट्राइब ऑनेस्टी और राइटियसनेस के लिए जाना जाता है. कह रहा है कि हम में से कभी भी कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, और इस हालात में चोरी एक बहुत अलग सी चीज़ उसको फील हो रही थी. Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. कहता है, इसके साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा था कि एक बहुत सुंदर घोड़ा है, मैं उसे देख पा रहा हूँ, उसे सूंघ पा रहा हूँ, उसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और मैं उसकी ब्रीदिंग को महसूस कर पा रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत एक्साइट कर रही है. और मैं नहीं विश्वास कर सकता था कि वो घोड़ा या तो मुराद का है या हमारी किसी भी फैमिली मेम्बर का है, चाहे वो सोए हों या जाग रहे हों. और मैं ये भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने उस घोड़े को खरीदा हो, किसने, मुराद ने. और मैं इस बात को भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने उसको चोरी किया हो. नो मेंबर ऑफ द गैरो-गैलिलियन फैमिली कुड बी ए थीफ. गैरो-गैलिलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. मैंने पहले अपने कज़न की तरफ देखा, उसके बाद घोड़े की तरफ. स्टेयर घूरना या टकटकी लगा कर देखना. STARE, स्टेयर मीन्स घूरना, टकटकी लगा के देखना. और सेकेंड इज द स्टेयर STAIR, दैट इज फॉर सीढ़ियाँ जो घरों में आमतौर पे बनी होती हैं. वी ओपनली से ही इज गोइंग अपस्टेयर्स, यानी कि वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है. ही इज कमिंग डाउन टू डाउनस्टेयर्स, इट मीन्स वो नीचे आ रहा है सीढ़ियों का यूज करते हुए. बट जो यहाँ पे स्टेयर है STARE, इट मीन्स टकटकी लगा कर देखना या घूरना. Murad, I stayed first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness, एक अजीब सी शांति सी दोनों के बीच में. Pious means पवित्र. And humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. जिसको देखकर मैं खुश भी हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था. Murad, I said, Murad, where did you steal this horse? तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. उसने कहा, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो खिड़की में से कूद जाओ. It was true then, अब ये सच था. He had stolen the horse, कि उसने घोड़ा चुराया था. There was no question about it, इसमें कोई शक की बात ही नहीं थी. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब निर्णय मेरे हाथ में था. वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था कि क्या तुम मेरे साथ हॉर्स राइडिंग पे चलोगे या नहीं. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. पर ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ राइड करने के लिए घोड़ा चुराना कोई बुरी बात नहीं है, जितना कि ये बुरा है कि किसी के पैसे चुराना. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. और फिर मुझे ये भी लगा कि अब तक चोरी ना किया हो. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing.
अगर आप में से कोई मेरे या मेरे भाई की तरह घोड़ों के लिए क्रेजी हैं तो फिर ये चोरी नहीं है और आपको भी ऐसा नहीं महसूस होगा। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। यह चोरी नहीं है जब तक हम इस घोड़े को बेचने का प्रोसेस नहीं करते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वुड नेवर डू। जिसको मुझे पता है कि हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। उसने कहा ठीक है बट जल्दी करो। आई लीप इनटू माय क्लोथ्स। मैंने फटाफट से अपने आप को कपड़ों के अंदर डाला। लीप वैसे तो ढेर होता है किसी भी लीप, बट यहाँ पे इसकी प्रपोजिशन के साथ इसका मीनिंग सेंटेंस में सेंस के साथ चेंज हो रहा है। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। मैंने विंडो में से जंप किया अपने कॉट यार्ड में और अपने कजन मुराद के साथ घोड़े की पीठ पे बैठ गया। बेटा, all of you are requested to read the chapter by yourself too, and if any of the word meanings which are very difficult for you, make them underline. You can ask me. You all have my phone number, and you can contact me on the WhatsApp also. And the other students who are not having my contact number, please share your any of the problem in the comment section. Thank you so much.